Hello everyone, I am Manisha Sajwan and I am creating the videos for geography optional, UPSC geography optional, and the basic reason behind why I am creating these videos is when I was preparing for the UPSC geography optional. That time I was not able to take coaching, and I have searched on internet the book list and the syllabus. So I will be providing the comprehensive coverage of the UPSC geography optional उन एस्पिरेंट्स के लिए जनरली जिन्हें मुश्किल होता है कि कैसे इतने सारे बुक्स में से कैसे आप अपने टॉपिक्स को क्या करें, मर्ज करें, कैसे टॉपिक्स को आंसर्स के फॉर्म में आप उनको बनाएं. ठीक है, तो आई हैव फेस्ड दिस इशू, सो आई जस्ट वांट कि आप लोगों को ये इशू फेस ना करना पड़े. तो मैं यहाँ पे अभी क्या करने वाली हूँ कि आपको comprehensive coverage, I'll be providing comprehensive coverage. Okay, so this is a brief introduction about myself, Manisha, BTech, MTech, and I have worked as a big data analyst with Wipro for 2.5 or 3 years. This is my Instagram ID, this is my Gmail ID. I need your feedback, I need your support so that I can improve my videos, my study material, and I am creating these videos from almost, no, I think 5 to 10, yeah, 9 and 10 books. So वो सारी बुक्स में से आप लोगों को इतनी बुक्स ना पढ़नी पड़े. अगर आपको बुक लिस्ट चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड द बुक लिस्ट ऑल्सो. आई कैन प्रोवाइड द लिंक ऑफ द सिलेबस टू. ओके, so the geography optional has 2 papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 consists of physical geography, human geography. Paper 2 is consist of geography of India. So for physical geography we have too many books. We have Majid Hussain, we have R.C. Tiwari, again we have Majid Hussain for human geography, world geography, and Satwinder Singh for the physical geography. And I'll be providing all the topics here, the subtopics of physical geography, and I'll be providing all the lectures for the subtopics of the human geography. Now geomorphology has these subtopics and I'll be covering each and every these subtopics. अच्छा, एक बात ये याद रख लो कि जितने भी टॉपिक्स हैं एटलीस्ट आपको 200 वर्ड्स तो एक टॉपिक के बारे में आपको आने चाहिए. ठीक है, और सब टॉपिक्स के बारे में भी आपको मिनिमम 200 वर्ड्स तो आपको आने चाहिए सो दैट यू कैन राइट योर आंसर इन अ गुड वे. सो the very first topic of today's lecture is geography. Geography is made up of 2 words, geo plus graphy. ये बच्चों वाली बात है, ये आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्या करना है कि बस चीज़ें याद रखनी है. आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको कोई जियोग्राफर नहीं बनना है. ठीक है, सो द फिजिकल जियोग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ जियोग्राफी. कुछ जियोग्राफर्स कहते हैं कि जियोग्राफी की 2 ब्रांचेस होनी चाहिए, दैट इज़ फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी. लेकिन बात लेटर जियोग्राफर्स इन्होंने कहा कि जियोग्राफी is consisting of 3 branches: physical geography, human geography, and biogeography. So the very first one is the biogeography. Yeah, it is one of the branches of the geography. Physical geography is the study of the physical environment that includes the relief features of the earth surface, relief features of the seas and the oceans. अगर अर्थ सरफेस के रिलीफ फीचर्स की बात करें तो आपके लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, आपके रिफ्ट वैलीज, आपके ओशन और सीज के अंदर के रिलीफ फीचर्स की बात करें तो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, कॉन्टिनेंटल स्लेब्स, आपके डीप सी प्लेन्स, इन सब की जो स्टडी है वो आपकी आती है फिजिकल जियोग्राफी. एंड ये आपकी जो डेफिनेशन है इट इज़ गिवन बाय आर्थर होम्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन जियोग्राफी? बेसिकली ह्यूमन जियोग्राफी इज plane of geography in which we study the interaction between the human and the environment, like the interaction between the human activity, how human behavior is changing and how human behavior is impacting the environment and vice versa. Okay, and biogeography is the study of the biosphere, which includes the physical environment, biotic and abiotic components. Biotic, living organism; abiotic component, non-living, like your water, एयर, विंड एंड ऑल्सो. बायोजियोग्राफी में आपकी स्टडीज़ आ जाएगी बायोस्फीयर की, इंक्लूडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स. ये हो गया आपका. नेक्स्ट है आपका जियोमॉर्फोलॉजी. अभी हमने पढ़ा क्या जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी. फिजिकल जियोग्राफी के अंदर आपका स्टडीज़ थी किसकी? आपकी सरफेस रिलीफ फीचर्स की, ओशियंस की, सीज की.
उसका ही सब टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, and this study includes the evolution, the description, the origin, developmentation, restructure, revaluation, destruction of these landforms, and the forces, the mechanism behind the evolution of and origination of these landforms. अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो मॉर्फोलॉजी के अंदर जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी लैंड मासेस हैं, लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसे बने हैं, कितने टाइम में बने, इन सब की स्टडी को हम किस में कवर करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में. अब आप कहेंगे रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं. रिलीफ फीचर्स हमारे पास 3 टाइप के हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में. फर्स्ट ऑर्डर यानी कि जो सबसे पहले बने, इस धरती पर जो सबसे पहले फीचर्स बने हुए हैं वो क्या है, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन. सेकंड ऑर्डर क्या है आपका, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, फॉल्स एंड ऑल. थर्ड ऑर्डर में कुछ छोटे छोटे लेवल के जो आपके लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं आपके सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स पे, उनको हम कहते हैं क्या, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स. ठीक है. अब ये जो जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो ये लैंडफॉर्म्स आपके बने हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब एक दिन में बन गए. इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स, लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स. तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल चेंजेस, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग पीरियड में अगर आप बोलोगे तो आपका क्या हो गया, माउंटेन बिल्डिंग हो गया. शॉर्ट पीरियड में आप बोलोगे जो आपका अर्थक्वेक आ गया, जो आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, इनसे जो आपके रॉक्स, जो स्ट्राटस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो आपके शॉर्ट पीरियड हो गए. अब मैंने आपको अभी बताया कि जो भी आपका इवोल्यूशन है, जो भी आपका डेवलपमेंट है इन लैंडफॉर्म का, उसके पीछे क्या है, एक फोर्स है. वो क्या है, आपके जियोमॉर्फोलॉजिकल फोर्स है. नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस, जियोमॉर्फोलॉजिकल फोर्सेस. वन इज एंडोजेनेटिक एंड अनदर वन इज एक्सोजेनेटिक. एंडोजेनेटिक वर्ड से ही आपको पता चला. एंडोजेनेटिक फोर्सेस लाइक जो आपके ओरिजिनेट होते हैं अर्थ के इंटीरियर से. ठीक है. तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस आपके क्या हो गए, अर्थ के इंटीरियर से आगे. नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक और सडन. वर्ड से आपको पता चल रहा है. डायस्ट्रॉफिक मतलब इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. सडन मतलब एकदम से हो गया, इट्स अ सडन रिएक्शन लाइक वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक. डायस्ट्रॉफिक, नाउ वी हैव another 2 types of diastrophic forces, एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक. एपिरोजेनेटिक को अगर हम ब्रेक करेंगे, एपिरो प्लस जेनेटिक. एपिरो मीन्स कॉन्टिनेंट्स, जेनेटिक जेनेसिस मीन्स ओरिजिनेशन. एपिरो आपका क्या है, एक ग्रीक वर्ड है. तो एपिरोजेनेटिक इज द ओरिजिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स. ओरोजेनेटिक अगेन ओरो प्लस जेनेटिक. ओरो इज अ ग्रीक वर्ड फॉर माउंटेन, जेनेटिक जेनेसिस मीन्स ओरिजिन. यानी कि आपके जो माउंटेन्स का जो ओरिजिन है उसके लिए जो आपका फोर्सेज अप्लाई होता है वो आपका क्या, ओरोजेनेटिक हो गया. एपिरोजेनेटिक अगेन अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट. ओरोजेनेटिक आपका, हाँ, एपिरोजेनेटिक इज अ वर्टिकल मूवमेंट, ओरोजेनेटिक इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. नाउ अगेन ओरोजेनेटिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टेंशनल एंड कंप्रेशनल. टेंशनल फोर्स आप किसको कहेंगे, व्हेन द रॉक मासेस, रॉक ब्लॉक्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उस टाइम में आपका क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा. टेंशन क्रिएट से आपके क्या होंगे, फ्रैक्चर्स आपके डेवलप होंगे. फ्रैक्चर्स का जो छोटा फॉर्म है वो क्रैकिंग है, और क्रैकिंग जो थोड़ा सा सीवियर हो जाए, जिससे आपके फॉल्ट्स आ जाए, फॉल्ट्स आने से ही आपके क्या होते हैं, कभी अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं. तो फॉल्ट्स और क्रैकिंग आपके क्या हो गए, टेंशनल फोर्सेस के कारण आपके क्या होते हैं, बिल्ड होते हैं. नाउ वी हैव कंप्रेशनल फोर्सेस. कंप्रेशनल फोर्सेस यानी कि व्हेन 2 बॉडीज ऑफ मासेस आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो उससे आपके क्या होते हैं, बैंड्स फॉर्म होते हैं. नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बैंड्स, वार्पिंग एंड फोल्डिंग. जब आपका कोई भी लैंड मास है, छोटे छोटे लैंड मासेस है, ज़्यादा मतलब हाइट में नहीं है, उनका जब क्या होता है, एमरजेंस होता है या सबमर्जेंस होता है, तो उसको आप वार्पिंग और डाउन वार्पिंग कहते हैं. फोल्डिंग में आपका क्या हो गया, आपके क्या होता है, लार्ज लैंड मासेस आपके क्या होते हैं, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में आपके आता है. फोल्डिंग यानी कि अभी आपने देखा हो, जो आपके माउंटेन्स बिल्डिंग होती है, फोल्ड्स आपने सुना होगा, अरावली माउंटेन्स और आपके हिमालयन माउंटेन्स, एंडीज वगैरह. ठीक है. नाउ वी हैव फोल्ड्स. व्हाट आर फोल्ड्स. अभी मैंने आपको बताया कि हाउ फोल्ड्स हैव क्रिएटेड. फोल्ड्स जनरली हमारे बनते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से, और जो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये आपका किससे प्रोड्यूस होता है, ये होता है हमारा ओरोजेनेटिक फोर्सेस. ओरोजेनेटिक फोर्स इज अ काइंड ऑफ endogenetic forces. So here we can see folds are the wave-like structured formed due to the horizontal movement caused by the
orogenetic and this orogenetic force is caused by the endogenetic forces, और जो आपके अर्थ के इनसाइड होता है, ठीक है। अब आपके जो ये फोल्ड्स हैं, दीज आर बैंड अप एंड बैंड डाउन। दिस स्ट्रक्चर, this arc-like structure is called anticline and this trough-like structure is known as syncline, and these two parts of a fold are known as limbs। तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई हैं। this arc-like structure is anticline, this trough-like structure is syncline and these are our लिम्स। बेसिकली जो ये आपका ये स्लोप्स है आपके एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन का, इसके ही आधार पर हमारे क्या होता है, फोल्ड्स को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब एक ये वाला ये फिगर भी देख लो, दिस इज़ आर हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज़ आर माउंटेन स्ट्रक्चर और यू कैन से दीज स्ट्राटा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, रॉक स्ट्रक्चर, ये इसकी लेयर्स हैं एंड दिस एंगल इज़ नोन एज द डिप एंगल। इसके बाद है टाइप ऑफ फोल्ड्स। तो जो आपके टाइप ऑफ फोल्ड्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का आपका फोल्ड बनेगा। द नेचर ऑफ द रॉक, द इंटेंसिटी ऑफ द कंप्रेशन फोर्स, यहाँ पे फोर्स आएगा, ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दैट कंप्रेशन फोर्स जो अप्लाई हो रहा है आपके किसके बीच में, रॉक्स के बीच में, रॉक ब्लॉक्स के बीच में, कितना मैग्नीट्यूड है उन फोर्स का, उसकी इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, ड्यूरेशन, नेचर, ये सब चीज़ आपका क्या करता है, फोल्ड्स बनने में क्या करता है, डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का आपका फोल्ड बनेगा। नाउ वी हैव दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। सिमेट्रिक फोल्ड आपका कब होगा, सिमेट्रिक फोल्ड व्हेन द लिम्स हैव द यूनिफॉर्म इंक्लिनेशन। आप देख सकते हो दीज टू लिम्स हैव द यूनिफॉर्म इंक्लिनेशन, ओके। तो ये क्या सिमेट्रिक हो गया, जब एक लिम्ब का इंक्लिनेशन थोड़ा सा कम होगा किसी दूसरे लिम्ब से, यानी कि व्हेन two limbs have non-uniform inclination, that fold will be known as asymmetric fold, ठीक है। अब हमारे पास आ गया थर्ड वाला मोनोक्लिनल। मोनोक्लिनल में आपका क्या हो जाएगा कि एक लिम्ब है, एक लिम्ब तो क्या होगा, स्टीप स्लोप में होगा और एक लिम्ब आपका क्या होगा, थोड़ा मॉडरेटली इंक्लाइन होगा, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज आइसोक्लिनल। आइसोक्लिनल में व्हेन द टू लिम्ब्स ऑफ a rock structure become parallel but not horizontal। अभी आप ये देख रहे हो ना, ये लिम्स आपके क्या हो गए, पैरेलल बन गए लेकिन हॉरिजॉन्टल। इसका जो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो ये है कि व्हेन लिम्स बिकम पैरेलल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिकम्बेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये थोड़ी ये चीज़ें देख लो, ये मैंने अपने नोट्स में से यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिया बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू find the images for these two, एंटीक्लिनोरियम और नेप्स। तो एंटीक्लिनोरियम सिंक्लोनियम क्या होता है, अब हमारे पास देखो, अभी हमें पता है, अभी वी हैव स्टडीड एंटीक्लाइन, वी हैव स्टडीड सिंक्लाइन। व्हेन द सीरीज ऑफ एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीक्लाइन अगेन सिंक्लाइन, तो वो स्ट्रक्चर्स हमारे क्या करेंगे, एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम। अभी जो हमारे एंटीक्लाइन हैं, ये वाली चीज़ देखो, ये एंटीक्लाइन है, पर यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, एक सीरीज ऑफ माइनर एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दिख रहा था, ठीक है। तो जो मेजर वाला पोर्शन होगा ये एंटीक्लिनोरियम हो गया, ये वाला जो पोर्शन हो गया वो आपका क्या हो गया, सिंक्लिनोरियम हो गया। अभी आपके नैप्स क्या होते हैं, अभी वी हैव स्टडीड रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड में हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे लिम्स आपके क्या हो जाते हैं, पैरेलल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। व्हेन द कंप्रेसिव फोर्स, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स इज दैट मच हाई, लिम्ब ऑफ वन साइड ओवरराइड्स द अनदर लिम्ब। जब एक लिम्ब दूसरे लिम्ब को आपका क्या कर दे, ओवरराइड कर दिया। क्यों कर दिया, कि आपका जो कंप्रेसिव फोर्स है उसकी इंटेंसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप उसको क्या कहोगे, नैप्स कहोगे। तो ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो। अभी रिकम्बेंट फोल्ड कैसे होता है, ये वाला आपकी लेयर इधर होती है, ये वाली लेयर इधर होती है, लेकिन अभी ये वाली लेयर ने इसको क्या कर दिया, इस वाले लिम्ब ने इसको ओवरराइड कर दिया। तो इससे जो आपका फॉर्म होता है ये आपका नैप्स कहलाता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, नैप्स ऑफ एल्प्स, एल्पाइन एंड हिमालय। नाउ फॉल्ट्स तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी फॉल्ट क्या होता है, अ फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर crustal rocks where in the rocks are displaced along a plane। जब आपके रॉक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं ड्यू टू
टेंशनल फोर्सेस, तो वो आपका क्या कहलाता है, फॉल्ट्स कहलाता है। ये याद रखना कि फॉल्ट्स आपके क्रिएट होता है टेंशनल फोर्सेस से, और आपके जो फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं वो होते हैं हमारे कंप्रेशनल फोर्सेस से। तो ये हमारा एक रॉक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका जो ये रॉक स्ट्रक्चर के साथ जो भी एंगल बनाता है दैट इज़ डिप एंगल। जो अपवर्ड वाला जो आपका ब्लॉक है दैट इज़ अप थ्रोन ब्लॉक। जो फॉल्ट के बाद फॉल्ट जिससे क्रिएट हो नीचे गया है वो आपका डाउन थ्रोन ब्लॉक है, ठीक है। और आपको जो डाउन थ्रोन ब्लॉक और ये रॉक स्ट्रक्चर के साथ जो आपका एंगल बनाएगा ये वाला भी आपका डिप एंगल है, ठीक है। ये वाला ये आपकी हैंगिंग वॉल है। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फॉल्ट। देखो फॉल्ट हमारा सबसे पहले नॉर्मल फॉल्ट। जब हमारे रॉक स्ट्रक्चर्स, रॉक ब्लॉक्स, रॉक मासेस व्हेन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द फॉल्ट इज फॉर्म्ड, दैट फॉल्ट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉल्ट। व्हेन टू रॉक ब्लॉक्स मूव इन द सेम डायरेक्शन यानी कि दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, रिवर्स फॉल्ट हो जाएंगे। लेटरल और स्ट्राइक का फॉल्ट, व्हेन टू रॉक ब्लॉक्स मूव्स हॉरिजॉन्टली, जब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो इसको आप क्या कहेंगे, स्ट्राइक कप कहेंगे। स्टेप फॉल्ट जनरली इसका ही आपका क्या है, लार्ज स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे एक और क्या हो जाएगा फॉल्ट, ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा उस टाइम पे दिस विल बी एक्टिंग एज अ अप थ्रोन ब्लॉक, एंड यहाँ जो नया ब्लॉक बनेगा यहाँ पे दैट विल बी क्रिएटिंग एज अ डाउन थ्रोन ब्लॉक। तो एक स्टेप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी विल गेट, एंड दैट फॉल्ट विल बी नोन एज स्टेप फॉल्ट्स, ठीक है। अब यह है रिफ्ट वैलीज ऑन ग्रेवन। रिफ्ट वैलीज और आपके ग्रेवन कैसे बनता है, रिफ्ट वैलीज आपकी जनरली बनती हैं फॉल्ट से, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फॉल्ट आया, ठीक है। फॉल्ट आने के बाद आपका क्या हो सकता है, दो टाइप के आपके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ईदर दिस पार्ट कुड मूव डाउनवर्ड और ईदर दीज क्रिस्टल पार्ट्स कुड मूव अपवर्ड। चाहिए अपवर्ड मूव करें, चाहे ये वाला पार्ट डाउनवर्ड मूव करेंगे, रिफ्ट वैली विल बी ऑलवेज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई है, रिफ्ट वैली आपकी यहाँ पे बन गई है। तो आप देख सकते हो रिफ्ट वैली रिप्रेजेंट्स अ ट्रफ डिप्रेशन और बेसिन बिटवीन टू क्रिस्टल पार्ट्स। अब कुछ जियोग्राफर्स कहते हैं कि रिफ्ट वैली ही ग्रेबन है, कुछ जियोग्राफर्स कहते हैं कि रिफ्ट वैली का जो लार्जर पार्ट है वो ग्रेबन है। लार्जर पार्ट इन द सेंस कि व्हेन द विड्थ ऑफ अ रिफ्ट वैली बिकम्स टू मच लॉन्गर, तो वो उसको क्या कहते हैं, ग्रेबन कहते हैं। ग्रेबन इज़ अ जर्मन वर्ड। ये थोड़ा सा एग्जांपल है आपके रिफ्ट वैलीज के, डेड सी, जॉर्डन रिफ्ट वैली, नर्मदा दामोदर वैली, सेंट्रल प्लेन ऑफ स्कॉटलैंड एंड स्पेंसर बे ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द गुड एग्जांपल्स of rift valleys. Now we have exogenetic forces. Guys, let me tell you, I am just giving a normal explanation what is exogenetic force, because I'll be covering the exogenetic force process in later lectures where I'll be discussing full denudational process which will cover your weathering, your erosion, your mass movement. तो यहाँ पे this is a brief इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स आपका क्या होता है, जो आउटसाइड द अर्थ है, ठीक है। लाइक आपका जो एंडोजेनेटिक था, एंडोजेनेटिक फोर्सेस कम्स विद इन द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, है ना। एक्सोजेनेटिक फोर्स अब आपका क्या हो जाएगा, आपके बाहरी वातावरण में जो आपके फोर्सेस हैं, आपका वाटर हो सकता है, आपका विंड हो सकता है, आपकी क्या हो सकती है, वेदरिंग हो सकती है, ठीक है। Exogenetic force is also known as denudational process, and denudational process is consisting of weathering, mass wasting, mass movement, erosion and deposition, ठीक है। weathering is a static process, erosion is a dynamic process। देखो एक बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में कहीं क्वेश्चन आया था कि इज weathering is a mandatory factor for mass movement, तो नहीं, weathering मास मूवमेंट के लिए कोई भी मैंडेटरी फैक्टर नहीं है। मास मूवमेंट could happen with or without weathering, ठीक है। weathering, we have 3 types of weathering. We will be discussing weathering in our upcoming lectures. weathering, mechanical weathering, ऑर्गेनिक वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इन आर अपकमिंग लेक्चर्स। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था, एक्सोजेनेटिक फोर्स।
आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई नीड ऑनेस्ट रिव्यू सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू अ गुड मटेरियल। या और आपको बुक लिस्ट चाहिए है तो आई कैन प्रोवाइड यू द बुक लिस्ट। बेसिकली बुक लिस्ट में आपका क्या है, फिज़िकल ज्योग्राफी यू कैन स्टडी और यू कैन रेफर Savindra Singh. Then you have 3 to 4 books of Majid Hussain for human geography, world geography. Then you have G.C. Leong and R.C. Tiwari for Indian geography. Plus, you have this model theory book of Majid Hussain. Then you have Kullar book for Indian geography. So you will be finding more than 9 to 10 books for the geography. Guys, just stick to the videos and I'll be providing all the I'll be providing the comprehensive coverage for the geography optional. Thank you so much. We will meet soon.